شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آبا و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سرکار سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین کی نظر کرم سے، سید تاج الدین کی نظر کرم سے، سید رحمت اللہ کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ کی نظر کرم سے، سید غلام علی شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم صاحبہ کی نظر کرم سے، اور بی بی بادشاہ زادی شمسی سبزواری تبریزی کی نظر کرم سے۔ یہ خاص ایام تمام برج والوں کے لیے اللہ کے کرم سے بہتری منظر عام پہ لائیں گے، لیکن مذہبی حوالے سے رنجشیں بڑھ سکتی ہیں، اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ تبھی کوشش کر کے جس بات سے انسان کا ایمان جڑا ہوا ہے اس بات پہ انسان بحث نہ کرے۔ اللہ تمام چیزوں کو، تمام لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے ناد علی، یعنی جب بھی دن کا آغاز ان 7 ایام میں 27 مرتبہ ناد علی پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں قدم بڑھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق سفید چیز، حسب توفیق کالی چیز اور حسب توفیق سبز چیز ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کو حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دیں گے تو انشاءاللہ پورا ہفتہ نظر اثر سے آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ کالی چیز میں آپ کالے چنے بھی دے سکتے ہیں، اور سبز چیز میں آپ سبزی یا باجرے کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، اور سفید چیز میں آپ آٹے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مولا آپ کے تمام پریشانیوں کو آپ سے دور کرے اور جو جو آپ کی دعائیں ہیں وہ محمد و آل محمد کے صدقے قبول کریں۔ نہیں، ہم کوشش کر کے زمین پہ بیٹھا کرے کچھ دیر، ان سے آپ کی 6 سینس اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ زمین پہ بیٹھنا، حاضر دماغ رہنا، مستقل مزاج رہنا کسی بڑے فائدے کی طرف آپ کو دھکیلے گا۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کے لیے معاشی اپورچونیٹیز منظر عام پہ آئیں گے، مالی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو ترقی کی راہیں ملیں گی۔ ابھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وقت بہت مبارک ہے، لیکن کسی بڑے سفر کو تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ اگر جانا ضروری ہے تو حسب توفیق ان 3 چیزوں کا صدقہ نکال کے، یعنی کالی چیز کا، سفید چیز کا اور سبز چیز کا صدقہ نکال کے اس کے بعد قدم بڑھائیں۔ مولا آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ کوشش رکھیں اپنی خواہشوں کو، اپنی فیوچر پلاننگ کو زیادہ لوگوں کو دکھایا بتایا نہ کریں۔ مولا آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ یہ ہفتہ ابھی آپ کے لیے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ مریخ کا جس طرح سے سفر اب اپنے دریچوں کی طرف گیا ہے تو یہ آپ کے لیے عروج لائے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 3 چیزوں کا اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس گھر میں خوشیاں تا دیر قائم نہیں رہتی، یا اکثر شادی ٹوٹ جاتی ہے، یا بندش کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں آتے، یا ازدواجی زندگی میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں اختلافات قائم ہوتے ہیں، یا کاموں میں رکاوٹ اور گھر میں آتے ہی بے سکونی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ ہر جمعرات اس بخور کی دھونی اپنے گھر میں دیا کرو۔ جیسے ہی تم جمعرات کو اس بخور کو اپنے گھر میں جلاؤ گے، تمام نحس طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اور کاموں میں جو الجھن ہے، رشتوں میں جو بندشیں ہیں، شادی میں جو رکاوٹیں ہیں، یا بے سکونی گھر میں جو قائم ہے، وہ سب اختتام کو جائے گی۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی بادشاہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ گھر میں بے سکونی، رشتوں میں بندش، کاموں میں الجھن یا گھریلو اختلافات سے پریشان ہیں تو یہ تمام نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور مہربان اسٹون سے آج، کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ مجھے امید ہے اللہ کے کرم سے آپ کے گھر میں خیر و برکت، سکون قائم ہوگا، کاموں میں الجھن ختم ہوگی، اور تمام نحس طاقتوں سے اللہ کے کرم سے آپ کا گھر اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹون سے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور فی سبیل اللہ حاصل کریں، یا ہماری ویب سائٹ مہربان.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ بخور ان 3 دنوں میں حاصل کریں، یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپس پہ موجود ہے ان سے بھی یہ رکاوٹ، پریشانی، نظر، حسد، تمام شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے والا یہ بخور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ برج توراس والے، آپ کی زندگی میں اعتراضات بڑھ سکتے ہیں، آپ کے اختلافات بڑھ سکتے ہیں، یاد رہے یہ ایام صبر کے ایام ہے۔ معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے ترقی تب آئے گی جب آپ کی میٹھی زبان آپ کے ساتھ ہوگی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جایا کریں، اور کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں، تو یہ بھی آپ کے لیے برکت و کامیابی کا سبب بنیں گے۔ اگر ان ایام میں پرندوں کو اناج کھلاتے تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ صبح کے آغاز میں پانی پہ
27 बता नादिली दम करके पानी पी के दिन का आगाज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने और कोशिश करें उन जगहों पे जाएं जहाँ ताज़ा हवा हो। मौला के करम से बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे और उन्हीं ख़यालात में, उन्हीं फैसलों में आपकी कामयाबी छुपी हुई है। इनका भी नियाम का सदका इन 3 चीज़ों का इसमें वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले ये नियम आपकी ज़िंदगी को फिर से कामयाबी की तरफ पलटेंगे। मौके मिलना कुदरत की तरफ से होता है, उन मौक़ों से फ़ायदा उठाना हमारा हुनर होता है। तो अभी यही वक्त आपके हुनर को ज़ाहिर करेगा और फिर से रौनक और कामयाबी के असबाब खुल के आएंगे। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लिया करें और हाजिर दिमाग रहने की कोशिश किया करें, क्योंकि हाजिर दिमागी से, मुस्तकिल मिजाजी से आपको कोई बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर दिन में 4 से 5 घंटे स्क्रीन से दूर हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आपकी क्रिएशन बढ़ेगी और हाजिर दिमागी की तरफ आप राग़िब होंगे। इनका भी नियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और इसमें वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले ये हम आपकी ज़िंदगी में क्रिएशन के असबाब पैदा करेंगे। अभी माली हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और मोहब्बत के हवाले से भी एक राह आपकी तरह हमवार होगी, लेकिन बड़े सफ़र को न जाएं तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है चंद इख्तलाफात आपकी ज़िंदगी में आ जाए और नज़र हसद को इन अय्याम मात देनी है, क्योंकि आपको किसी नज़र की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है सर दर्द बढ़ जाए, किसी काम में रुकावट हो जाए, किसी मोहब्बत में रंजिशें पैदा हो जाए। तो जितना हो सके अपनी खुशियों को ज़्यादा दिखाए बताए ना करें और रोज़ सुबह 4 कुल आयत कुर्सी पढ़ के दिन का आगाज़ करें। और साथ साथ 27 बता जो इस हफ्ते का इसमें आज़म यानी नादे अली, उसको पानी पे दम करके पी के दिन का आगाज़ करें। उनसे भी नज़र अल्लाह के करम से ख़त्म हो जाएगी। अभी जो वक्त शुरू हुआ है ये आपको आपकी मंजिल से मिलाने आया है। बशर्त मुस्कुराहट चेहरे पे कायम रहे और फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा दिखाया बताया ना करें। इनका भी नियाम का सदका 3 चीज़ों का इसमें वापस है स्क्रीन पर दिखा लें। ये नियम आपकी ज़िंदगी के वो हैं जिसमें तरक्की की राहें खुल के आएंगी। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। अगर कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। याद रहे अज़दवाजी झगड़ा है, मोहब्बत के बारे से रंजिशें मंजर आम पे दिख रही हैं। आपकी मीठी ज़बान, आपका हाजिर दिमागी से चलना, आपका बर्दाश्त करना फिर बहुत ज़रूरी है। गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे, नुकसान आपकी तरफ बढ़ेगा। गुस्से का जवाब सब्र से देंगे तो थोड़े वक्त में सामने वाले इंसानों को एहसास होगा कि आपने उनके लिए क्या किया है। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं बल्कि हिकमत अमली के साथ फैसले करने का है। कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लें ताकि आपका फोकस आपके मकसद पे कायम रहे, सिर्फ खुशियों पे नहीं। इनका भी नियाम करके इन 3 चीज़ों का और इसमें वापस है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज वर्को वाले ये आपकी ज़िंदगी में खुशी की लहर दोहराएंगे। घरेलू इख्तलाफात ख़त्म होंगे और माशी हवाले से बेहतरी मंजर आम पे आएगी। लेकिन अल्लाह के करम से किसी सफ़र या कामयाबी की वजह से नई नई राहें आपकी तरफ आएंगी और किसी काम के तौर से आपको तरक्की मिलेगी। याद रहे अपनी खुशियों को जितना छुपाएंगे उतना खुशियाँ आप देर तक आपके साथ होंगी। जितना हो सके अपनी माली असासे का जिक्र किसी के साथ न करें और आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाया करें। इन अय्याम अगर लाइट कर ज़्यादा पहनते तो वो भी आपके लिए बेहतर। रोज़ सुबह नीम गर्म दूध पीते हैं और दूध पे 27 नादिली पढ़ते हैं तो वो भी आपके 6 सेंस को रोशन करेगा और आपको एक हुनर से, ऐसे हुनर से नवाजेगा जिनसे आपको कामयाबी और कामरानी तादेर मिलती रहेगी। इनका भी नियाम का सदका 3 चीज़ों का और उसमें वापस है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले ये आपकी ज़िंदगी में अमन लाएंगे, मोहब्बत लाएंगे, कामयाबी लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, क्योंकि अभी वक्त फिर से बदला है। कि याद रहे अभी माशी हवाले से, माली हवाले से असबाब तो खुल के आएंगे, लेकिन अज़दवाजी मसाइल मंजर यहाँ पे आ सकते हैं। याद रहे मोहब्बत के हवाले से बर्दाश्त पैदा करें। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे उम्मीदें कम रखेंगे तो दर्द तकलीफें कम मिलेंगी। और जब भी किसी से बात करते हैं मुस्कुरा के मुकम्मल बात सुन के फिर जवाब देते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुबारक होगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत मुबारक होने वाला है। कहीं सफ़र को जाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत मुबारक होने वाला है। लेकिन अपनी खुशियों को वक्त से पहले जाहिर न करें वरना परेशानी मंजर यहाँ पे आ सकती है। इनका भी नियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और इसमें वापस है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले ये हम आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से तरक्की लाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये अय्याम आपके लिए ऐसे असबाब पैदा करेंगे, ऐसी चीज़ें पैदा करेंगी जिसमें आपको फैसला लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को छोड़ना होगा, कुछ कामों को करना होगा। याद रहे बुजुर्गों से झगड़ा इन अय्याम में बेहतर नहीं। अगर बुजुर्ग कुछ कह देते हैं, बड़े कुछ बोल देते हैं तो सब्र के साथ उनको बर्दाश्त कर लें। अगर फिर वक्त कोई झगड़ा मंजर आम पे आया तो नुकसान आपकी तरफ पलटेगा और वो कामयाबी ज़िंदगी में दिख रही है वो दूर जा सकती है। क्रिएटिव और मेहनती तो आप हैं, लेकिन आपका सब्र अगर आपके साथ रहा तो कभी भी कोई नाकामी आपके करीब नहीं आएगी। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाया करें, इन अय्याम के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम है। और रोज़ सुबह पानी पे 27 नादिली पढ़ के पी लिया करें। इनसे हाजिर दिमागी, मुस्तकिल मिजाजी और सही फैसले करने की ताकत आपको मिलेगी। इनका भी नियाम का सदका 3 चीज़ों का और इसमें वापस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस ज़मीन पे अजीम नेमतों में से एक नेमत भूख
पुखराज पत्थर है, क्योंकि जिस भी इंसान के हाथ में पुखराज पत्थर पहना होता है तो अल्लाह उस इंसान के रास्ते शोहरत इज्जत के लिए खोल देता है। अल्लाह के वली मेरे दादा हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी ने फरमाया कि जब जब सूरज की रोशनी इंसान के हाथ में पहने हुए पुखराज को लगती है तो वो इंसान के दिमाग से जुड़ जाता है और उसकी शुआएं इंसान के वजूद में मेहनत करने का जज्बा, हाजिर दिमागी से जवाब देने का हुनर और अपने मकसद की तरफ बढ़ने का जज्बा पैदा करती है। तभी इस पत्थर को शोहरत का पत्थर भी कहते हैं। बड़े बड़े सियासतदान या शोबिस के वो लोग जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है वो अपने हाथ में पुखराज पत्थर पहनते हैं। अगर आप आज कल और परसों ये पुखराज पत्थर लेंगे तो आपको ये रूहानी ताकत वाला बखूर जिसकी धुनी घर से तमाम नहस चीजों को खत्म करती है फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। बुर्ज सजिटेरियस वाले ये आपकी ज़िंदगी में फिर से तरक्की लाएंगे, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे और नए नए कामों में आप उलझेंगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। माशी हवाले से, माली हवाले से तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लेकिन किसी अपने से झगड़ा हो सकता है। तभी जितना हो सके फिर वक्त मीठी ज़बान से बात करें, गुस्से पे काबू करें, वॉक पर ज़रूर जाएँ जहाँ खुशगवार माहौल हो, क्योंकि आपका ऐसी जगह पे जाना आपके अंदर के जज्बात को काबू करेगा। स्क्रीन से 3 से 4 घंटे दूर रहें, इनसे अल्लाह के करम से आपको क्रिएशन इनायत होगी और कुछ ऐसे फैसले आपसे होंगे जिनसे कामयाबी और कामरानी के रास्ते आपकी तरफ आप पहुँचेंगे। अज़दवाजी मसाइल, घरेलू इख्तिलाफात भी मंजर आम पे दिख रहे हैं, इसलिए तमाम लोगों की बातों को सुनिए और कोई तल्ख फैसला ना करें, कोई जज्बाती फैसला ना करें, कोई इमोशनल फैसला ना करें, क्योंकि किसी इमोशनल फैसले से कोई नुकसान जुड़ा हुआ दिख रहा है। कुछ तो ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांस लेते हैं तो वो भी इस हफ्ते के लिए बहुत मुबारक होगा। इनसे आप हाजिर दिमाग और मीठी ज़बान की तरफ आगे होंगे और उसी से ही आपके खजाने की चाबी खुलेगी। इनका भी नियाम का सदका इन 3 चीज़ों का उसमें वापस है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले ये यहाँ आप पे एतराज़ात उठ सकते हैं आपके चलने फिरने और आपके कामों के हवाले से। तभी जितना हो सके उन सारी चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि फिर वक्त अगर किसी चीज़ को सोच के आप रोएंगे, परेशान होंगे तो किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि आपको ही फ़र्क पड़ेगा और आपकी ही कामयाबी में फिर रुकावटें पैदा होंगी। खुशियों के लिए एक वक्त मखसूस कर लें और फ़ायदे के लिए अपने आप को वक्फ कर लें, क्योंकि आपका फ़ायदे की फ़िक्र करना ही आपको फ़ायदे की तरफ राग़िब करेगा। याद रहे जितना हाजिर दिमाग रहेंगे उतना तरक्की की राहें आपके साथ होंगी, जितना आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे उतना ही कामयाबी की राहें आपके साथ साथ होंगी। अभी पढ़ाई लिखाई की तरफ राग़िब हो जाएं और स्टडी करने की तरफ राग़िब हो जाएं। वो चीज़ें देखें जिनसे इल्म बढ़ता है, तजुर्बात बढ़ते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हों या किताब पढ़ना हो, तो ऐसी चीज़ों में अपने आप को मसरूफ़ करें। कुछ देर बाहर जाया करें, वहाँ जहाँ दरख्त फूल है तो वो भी आपकी 6 सेंस के लिए, हाजिर दिमाग के लिए बहुत मुबारक होगा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाया करें। जितना हो सके नियाम में मीठी चीज़ें कम खाएं और पानी ज़्यादा पिएं, सब्जियाँ ज़्यादा खाएं। इनका भी नियाम का सदका इन 3 चीज़ों का वापस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले ये आपकी ज़िंदगी में किसी खोई हुई दोस्त, खोई हुई चीज़ को फिर से लाएंगे। आपकी ज़िंदगी फिर से अमन आएगा, मोहब्बत आएगी, कामयाबी आएगी, कामरानी आएगी, खुशहाली आएगी। तभी जितना हो सके हाजिर दिमाग रहें, मीठी ज़बान से बात करें। अभी मीठी ज़बान से बात करना आपको तरक्की की तरफ राग़िब करेगा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। ये आप किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही अहम होने वाला है। लेकिन जितना हो सके मिर्च मसाले खट्टी चीज़ें सबसे कम खाएं और हाजिर दिमागी को कायम रखने के लिए लोगों को सुना करें और जो वक्त गुजर रहा है उसमें जिया करें। बड़ी फ़ायदे की राह आपकी तरफ हमवार होनी है इन अय्याम में। इनका भी नियाम का सदका इन 3 चीज़ों का इसमें वापस है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले ये हम आपकी ज़िंदगी में तब्दील करने आपको आए हैं। तब्दीली मंजर आम पे आएगी, कामयाबी मंजर आम पे आएगी। तभी जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाया करें तो आपके लिए बहुत मुबारक है। अपने राज सीने में दबाएं, जितना अपने राज लोगों को बताएंगे उतना परेशानी का सामना होगा। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते तो वो भी आपके लिए मुबारक है। जितना हो सके फिर वक्त कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लें और जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मिनट नादिली पानी पे दम करके पी लिया करें। इनसे आपकी 6 सेंस स्ट्रॉन्ग होगी, हाजिर दिमागी कायम होगी और सही फैसले की तरफ आप राग़िब होंगे। अभी आंखों को खोल के चलना, ज़बान को खामोश रखना आपको किसी बड़े फ़ायदे की तरफ राग़िब करेगा। ये वक्त आपकी ज़िंदगी की तब्दील करने का वक्त है, माशी हालात बेहतरी का वक्त है। तभी जितना हो सके फिर वक्त अपने आप की, अपने फैसलों की और अपनी शख्सियत की फ़िक्र करें। अपनी ज़बान को ज़ाया न करें, अपने लफ्ज़ों को ज़ाया न करें, अपने वक्त को ज़ाया न करें। बड़ी मंजिल, बड़ी कामयाबी के साथ आपको आ मिलेगी। इनका भी नियाम का सदका इन 3 चीज़ों का इसमें वापस है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आपकी तमाम दुआएं अपनी दरबार में कबूल मकबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।